Hello, everyone, and welcome back to the second part of Enzymes. If you haven't checked out the first part yet, you can go to the description and check out the first video, which includes introduction to enzymes, introduction to the active site, and some properties of enzymes. So, in this video, we are going to talk about how the enzymes work and what are the factors that affect enzyme activity. So let's start with some theories, and first we will talk about Fisher's template theory, which is also known as lock and key model of enzyme substrate binding. According to this theory, the active site of the unbound enzyme is complementary in shape to the substrate. तो इसमें क्या बताया गया है, इस थ्योरी में बताया गया है कि जो एंजाइम होता है when it is not bound to the substrate yet, जब वो सबस्ट्रेट से बाइंड भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसकी एक्टिव साइट की जो शेप होती है, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट विच इट इज़ गोइंग टू बाइंड. तो बताया क्या गया है, ताले और चाबी से इन्हें कंपेयर किया गया है. जैसे ताला होता है, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और चाबी होती है, उसकी कुछ शेप होती है. तो वो चाबी हर किसी ताले में नहीं लग सकती, बट फॉर ईच लॉक वी हैव अ पर्टिकुलर की, एंड दिस रिजेंबल्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम. It shows that the active site is complementary to the substrate, and the substrate will come and bind to its active site only the particular substrate which is specific for it. As you can see, there is A shape, B shape, C shape, which is seen in the active site, and also the substrate is having the complementary A, B and C like shapes, which is going to fit in this active site, and then this fitting will form the enzyme substrate complex, and then the catalysis will take place. The second theory is Koshland's induce fit theory. According to this theory, the enzyme changes its shape on substrate binding. It do not possesses the complementary shape of the substrate before binding, but it states that when the enzyme will come in the approximation to the substrate, there will be some complementary changes, and the active site of the enzyme will attain the shape complementary to the substrate. As you can see in this diagram, before the binding, the enzyme was not having the complementary shape to the substrate that is shown in the green. But when they came into approximation and the enzyme substrate complex is formed, the enzyme has attained the complementary shape of the substrate and they have bind well. So the active site forms a shape complementary to the substrate only after the substrate binds to it. Next is enzymes affects reaction rate, not equilibrium. This is very important point about enzymes. As I have told you in the first lecture also, that when an enzyme enters in a reaction and catalyzes and enhances the speed of the reaction, it do not participate in the reaction permanently, meaning that it would not get changed in the reaction. As it was entered in the reaction, it will come out the same. In between, it can share some charges, some groups can exchange things from one substrate to another, from substrate to coenzymes, but it will not get changed by itself. So when it is not getting changed by itself, it is not taking or giving any atoms of it to the substrate to form products. So the enzyme can only enhance the rate of reaction, but it do not changes its equilibrium. कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का एग्जाम्पल, जो कि CO2 और H2O को H आयन और बाइकार्बोनेट आयन में बदलता था. तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम उस स्पीड को
7.7 इंटू 10⁻6 टाइम्स एनहेंस कर देता है। बट ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 डालने पर मुझे 4 मॉलिक्यूल ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस मिल जाएंगे। मतलब कि वो स्पीड तो बढ़ा रहा है, जो रिएक्शन है उसकी स्पीड तो एनहेंस हो रही है, कैटालिसिस इज टेकिंग प्लेस, बट द कैटलिस्ट itself is not taking part in the reaction that it would change the equilibrium of the reaction. A simple enzymatic reaction might be written as enzyme substrate are added, then enzyme substrate complex is formed, then enzyme product complex is formed, and the enzymes and products are formed. According to this reaction, it states that firstly the enzyme and substrate come into approximation, then there is formation of enzyme substrate complex when they both came into contact. Then there are some conformational changes which turns substrate into product inside the enzyme, or when the substrate is still bound to the enzyme, the substrate is converted into product. Then the product will get released from the enzyme, and the enzyme will came out back as same as it was entered in the reaction. It did not get changed itself in the reaction, and also there is no change of equilibrium in the reaction by the enzymes. Now the enzymes accelerate reactions by facilitating the formation of the transition state, and enzyme enhance reaction rates by lowering the activation energy. तो पहले जानते हैं कि activation energy क्या होती है. As you can see in this graph like diagram, that the catalyzed reaction is shown very below and the uncatalyzed reaction is shown very higher in this graph. And there are two arrows showing that this is some kind of transition state. तो transition state क्या होता है? Transition state is a state when the substrate is not substrate anymore but has not turned into product yet, and the energy that is available to it, the delta G itself, will decide whether the substrate will form or whether the product will form, or it would not form into product but will turn back into the substrate. तो यही ट्रांजिशन स्टेट होता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन हुआ होता है, जब हमारे केमिकल चेंजेस, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द एंजाइम व्हेन इट इज इन द एक्टिव साइट, द सबस्ट्रेट इज इन द एक्टिव साइट. तो वही होता है ट्रांजिशन स्टेट, जब एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं और कैटालिसिस का प्रोसेस चल रहा होता है. उस वक्त जब सबस्ट्रेट भी नहीं रहा और प्रोडक्ट भी नहीं बना अब तक, दैट इज अ क्रूशियल स्टेट व्हेन इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बट द कैटलाइज्ड रिएक्शन एज शोन इन दिस फिगर रिक्वायर्स लेस एनर्जी. तो ये करवाता कौन है? ये एंजाइम्स कराते हैं. एंजाइम्स क्या करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जो उस ट्रांजिशन स्टेट के लिए उसे एनर्जी चाहिए, मतलब उसे प्रोडक्ट में बदलने के लिए सबस्ट्रेट को जो एनर्जी चाहिए, उस रिएक्शन को कराने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको ही ये एंजाइम्स क्या करा देते हैं? कम करा देते हैं. हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं. किसी काम को करने के लिए आपको कम एनर्जी लग रही है तो वो काम आप एफिशिएंटली और जल्दी कर पाएंगे, लेकिन अगर उसी काम को करने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो काम आप डिफ़िकल्टी से और देरी से कर पाएंगे. तो इस डायग्राम में यही था, और यही है एंजाइम्स का असली मैकेनिज्म कि कैसे वो रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं. वो सिंपली बस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं. और कैसे कर देते हैं? बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी यूज्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट. एंड ट्रांजिशन स्टेट क्या है? जब एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन चुका है और सबस्ट्रेट अभी तक सबस्ट्रेट भी नहीं बना है, सबस्ट्रेट अभी तक सबस्ट्रेट नहीं रहा है और प्रोडक्ट भी नहीं बना है. आगे बढ़ते हैं.
अब इस डायग्राम में एक छोटा बच्चा दिखाया गया है जिसने एक स्वेटर पहना हुआ है। तो ये जो हमारा छोटा बच्चा है ये हमें सबस्ट्रेट की तरह मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट की तरह डिनोट किया गया है। फिर ये जो छोटा बच्चा है ये बहुत परेशान है और ये अपना स्वेटर नहीं उतार पा रहा है। इसको गर्मी लग रही है बट ये स्वेटर नहीं उतार पा रहा है। लेकिन फिर क्या होता है कि एक बड़े जने की तरह एंजाइम आता है जिसको पता है कि स्वेटर को किस तरीके से उतारना है। बच्चे को नहीं पता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एंजाइम को पता है कि एक्चुअली में क्या टैक्टिक्स अपनानी है इस स्वेटर को जल्दी से भी और सही से भी उतारने के लिए। तो एंजाइम जब आया उस बच्चे की हेल्प करने के लिए तो इसको डिनोट किया गया है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। फिर उसके बाद ये जो एंजाइम है वो स्वेटर को उतार रहा है। अभी तक स्वेटर उतरा भी नहीं है, लेकिन अभी बच्चे ने स्वेटर पूरी तरह से पहना भी नहीं। तो यही बात उसमें बताई थी मैंने कि जो transition state है is a state when the substrate is not substrate anymore but is not product yet। वो अभी तक प्रोडक्ट में भी नहीं बदला है, अभी तक स्वेटर उतरा नहीं है, लेकिन बच्चे ने स्वेटर पहन भी नहीं रखा है। इसी स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। फिर उसके बाद जब बच्चे का स्वेटर उतार दिया एंजाइम ने तो एंजाइम डिसोसिएट हो गया, मतलब अलग हो गया। वो बड़ा जना स्वेटर लेके हट गया और जो बच्चा था, वो जो सबस्ट्रेट था हमारा, वो प्रोडक्ट में बदल गया। इसी को हमने प्रोडक्ट से डिनोट किया है। तो अभी मुझे लगता है कि ट्रांजिशन स्टेट का कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा। एक्टिवेशन एनर्जी वही एनर्जी जो ट्रांजिशन स्टेट में ज़रूरत होती है। ये हमारा कैटलाइज्ड रिएक्शन है जो कि रेड से दिखाया गया है, और ये ब्लू वाला जो है वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी लग रही है और कैटलाइज्ड रिएक्शन में फ्री एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है। लेकिन ए से बी ही बन रहा था तो ए से बी ही बना है। ऐसा नहीं है कि एंजाइम की प्रेजेंस में ए से बी और सी डी भी बन जाएंगे, नहीं। ए सबस्ट्रेट है, बी प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट विल बी सेम बट द rate of reaction will be reduced as the activation energy has decreased by the enzyme. Enzymes can transfer one form of energy into another. इसमें क्या है? In cellular respiration, the free energy contained in small molecules derived from food is converted into the free energy of an ion gradient and then into a different currency, the free energy of adenosine triphosphate. इसमें बस यही बताया गया है कि एंजाइम की मदद से हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। द एंजाइम मायोसिन कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ एटीपी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स। जैसे कि जो एंजाइम मायोसिन हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है वो एटीपी एक एनर्जी करेंसी है विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर लिविंग, और हमारी सारी एनर्जी हमारे एटीपी से आती है। तो ये मायोसिन मसल्स में क्या करता है, एटीपी को ब्रेक करता है एनर्जी निकालने के लिए। द केमिकल एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम मायोसिन विच इज हेल्पफुल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो बस एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग। बार बार यही बात बताई जा रही है कि एंजाइम्स बस कैटलाइज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, बट एंजाइम डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इन बाय इटसेल्फ। दे डू नॉट चेंज इट्स स्ट्रक्चर और केमिकल bonds or anything. They just help in the reaction and help in the enhancing the speed of the reaction. Nearly all known enzymes are protein. अभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जैसे बताया था कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, एंड व्हाई दे आर बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। बट according to this, nearly all known enzymes are proteins. Nearly all, not all. तो कैसे हमें पता लगता है कि वो प्रोटीन है, कैसे हम जान सकते हैं कि प्रोटीन है? तो यही बताया गया है कि
ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हमें जिससे ये एविडेंस मिलते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं. एंजाइम्स फॉलो फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के द्वारा जितनी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम्स फॉलो करते हैं. दे आर हीट लेबाइल, दे कैन बी डिस्ट्रक्टेड बाय हीट. जब किसी भी प्रोटीन को हम बहुत देर तक हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है. एंजाइम्स भी सेम करते हैं. दे आर वाटर सॉल्युबल, प्रोटीन्स आर पोलर एंड दे आर वाटर सॉल्युबल, सो डू दे एंजाइम्स. दे कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स, जैसे कि अमोनियम सल्फेट हम लैब्स में करते हैं. दे कंटेन 60% वेट एज नाइट्रोजन. प्रोटीन में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नाइट्रोजन का, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड्स CN यही होता है. तो 16% weight of the enzyme are nitrogen as shown in the proteins also. So we also get one more evidence that enzymes are proteins. However, proteins do not have an absolute monopoly on catalysis. इस बात का मतलब ये है कि हमने कहा कि ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स हों. राइबोजाइम्स और नॉट प्रोटीन्स, जैसा कि पहली स्लाइड में बोला गया कि ऑलमोस्ट ऑल, तो वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है राइबोजाइम्स. राइबोजाइम्स आर अमेजिंग एज दीज आर कैटालिटिक RNAs.